Hello dear student, today we are going to learn maths second chapter, that is angles. In previous lecture we have learnt about basic concepts of geometry and its practice. So in this lesson we learnt about various types of angle. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है जीरो एंगल. What is it? Zero angle. First angle is zero angle. Zero angle. The measure of zero angle is 0 degree. तो 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो जीरो एंगल, जीरो मेजरमेंट होता है उसका. और ये कैसे लिखते हैं? इट इज रिटन जीरो एंगल, इट इज रिटन एज लाइक दैट. इस तरह से आप लिखेंगे. ऊपर होता है ये डिग्री का साइन है, ये क्या है? डिग्री. 0 डिग्री. अब जब क्या होता है, दो पेंसिल्स जब एक दूसरे के ऊपर आप रखोगे, एट दैट टाइम इट मेक्स द एंगल ऑफ 0 डिग्री. See student, here are two pens and when we put these two pens on one another, at that time it makes 0 degree angle. अब इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? वो एंगल है 0 एंगल. ओके, देन नेक्स्ट है acute angle. An angle greater than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle, and the angle formed in figure B is dash angle. अब देखो, इस फिगर B में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा एंगल है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? द नेम ऑफ दिस एंगल इज an acute angle. क्या है? an acute angle. Acute angle means less than 90 degree and greater than 0 degree is called acute angle. And you can also name this angle also. अब इस एंगल को आप नेम भी दे सकते हैं. ओके, सपोज आई नेम दिस एंगल O. तो you can read this angle O and write it as angle O. तो आपको एंगल O कैसे लिखना है? ऐसा. ओके, एंड OA and OB are called the arms of the angle. OA and OB को हम क्या बोलेंगे? Arms of the angle. And the point at which these two arms meet is called the vertex. अब ये OA and OB कहाँ पे मीट हो रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं? एट पॉइंट O. तो इस O पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल. सो O इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. सो ये जो एंगल O है, वी कैन राइट दिस एंगल O इन अदर टू वेज आल्सो. ये O एंगल हम दूसरे दो प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एंगल AOB और एंगल BOA. सी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स पॉइंट हमेशा जो एंगल आपको रीड करना है वो एंगल का जो एंगल आपको रीड करना है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए. व्हेन यू आर गिव द नेम ऑफ एंगल बाय यूजिंग 3 letters. तो यू कैन give the name by 1 letter and read the name of angle by 1 letter or by 3 letters. 3 letters का भी यूज करके आप एंगल रीड कर सकते हो एंड 1 लेटर का भी यूज करके आप एंगल लिख सकते हो. तो एक एंगल हम 3 वेज से लिख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट एंगल. तो राइट एंगल, व्हाट इज मीन बाय राइट एंगल? The angle formed in figure C is right angle. Why this is an right angle? ये figure C जो है वो right angle है. क्यों है? Because its arms are perpendicular to each other. ये जो आर्म है, समझो इसको नाम दिया है C, O और ये D. आर्म OC and आर्म OD ये एक दूसरे के ऊपर
तो ये दो पेन्स कौन सा एंगल बना रहे हैं? दे मेक द एंगल राइट एंगल। तो ये राइट एंगल है। सो वन लाइन इज, ये जो लाइन है ये लाइन है हॉरिजेंटल एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर और वर्टिकल, एंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस when joined it makes the angle right angle. Okay. अब जब दो, एक आड़ी लाइन और एक सीधी लाइन जब मीट होती है, they makes the angle of right angle. Okay. Then next, obtuse angle. What is mean by obtuse angle? The angle forming figure D is called an obtuse angle. तो ये फिगर डी जो है, इसमें जो एंगल तैयार है दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 से कम है। सो इसलिए इस टाइप के एंगल को बोलते हैं obtuse एंगल। तो यहाँ पे लिखो an obtuse angle. An angle greater than 90 degree but less than 180 is called obtuse angle. Now next angle is straight angle. An angle like this. अब ये जो angle बन रहा है, the angle between these two planes is called straight angle. Is called, this is acute angle, this is right angle, and this is obtuse angle, and and this is straight angle. It is called a straight angle, and the angle of straight angle is 180 degree. और straight angle का measurement कितना होता है? 180 degree. The angle, a straight angle measures 180 degree. अब देखो ये दो पेन्स हम इस टाइप से रखा तो उसे बोलते हैं straight angle. Then reflex angle. The angle greater than 180 and less than 360. जो एंगल 180 से ग्रेटर होता है, समझो ये टू पेन्स एक दूसरे के ऊपर है मीन्स जीरो एंगल, देन acute angle, देन right angle, देन obtuse and then straight angle. Okay, ये straight angle, and when this plane turn again, it will form the angle of the angle is reflex angle. जब ये पेन और आगे जाएगा तो वो क्या बनाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, एंड दैट रिफ्लेक्स एंगल मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? ग्रेटर देन 180 मींस 180 से बड़ा बट लेस देन 360. देन नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल. द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. तो कंप्लीट वेन ये पेन यहाँ से लेके वेन गोज टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब ये इसके ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा देन इट विल मेक द कंप्लीट एंगल. यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ, ओके, ये राउंड वो पूरा करेगा एंड मीन्स 180 प्लस ऊपर का 180 सेमी सर्कल का 180 एंड the another semicircles 180 means the it makes complete angle. और दो स्ट्रेट एंगल से हमारा बनता है कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री. I hope you understood all these concepts very well, and we will in next